with the new topic of today is the configuration. Now, what is meant by configuration? It's the arrangement of atoms that characteristical stereoisomer is called as configuration. अब हमने configuration तो देखा कि stereoisomers कैसे होते हैं, enantiomers, diastereomers ये सब कैसे होते हैं, ये हमने देखा previous lecture में. अब हमको क्या देखना है कि हम अगर एक enantiomer और diastereomer है तो हम IUPAC नेम या जब भी हम उस कंपाउंड का नेम करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे. अब दो enantiomers है, but how we are going to name them, ठीक है. So they are following methods which are decided to name these in stereoisomers. The first method is a relative configuration, that is D and L system, and the second method is absolute configuration, that is R and S system. So let's begin with the relative configuration. जैसे कि ये नाम सजेस्ट करता है, इट्स अ रिलेटिव, इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी. ठीक है, हम दो जो आइसोमर्स है इनका एक कंपैरेटिव करते हैं और उसको कंपेयर करके हम दोनों का नाम अलग अलग करते हैं. सो इट्स अ रिलेटिव, दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू ईच अदर, उसके रिलेटेड हम उसका नाम असाइन करते हैं. सो for a standard, we take a glyceraldehyde molecule. अब जो glyceraldehyde molecule रहता है, as you can see in the structure, this is having one single carbon, one single central carbon, which is a chiral carbon. As you can see, all the four groups attached to this carbon are different. So this carbon, this molecule is a chiral compound. That means it is not having any center of symmetry. इसमें कोई center of symmetry नहीं है. That means the compound will be optically active. So they are optical isomers of each other. So there are two isomers, as we can see. Now one carbon, तो हम optical isomerism कैसे निकालते हैं? How many optical isomer will be there? It will be 2 to the power n, where n is the number of central atom, or you can say central carbon. So in this case, there is only one central carbon, so n is 1. So we have two optical isomer of glyceraldehyde, and both of the optical isomer, as we can see, we can write this structure in this form also, and we can write this structure in this two-dimensional form also. Okay, both are the same thing, and this is the isomer. That means we can see this is a mirror image of this. ये जो compound है इसका ये mirror image है, और ये अगर आप टू डायमेंशनल में भी देखते हो तो ये उसका मिरर इमेज है. तो ऑब्वियसली दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सो वी कैन से they are enantiomers. Okay, but these mirror images are not superimposable. That means they have non-superimposable mirror image of each other. That means they are enantiomers. So how we are going to write these enantiomer? ये एक enantiomer है, वो दूसरा enantiomer है. तो अब हमको इसका नाम लिखना है, तो हम कैसे नाम लिखेंगे इसका? In relative configuration, what we do, we consider the direction of OH molecule. ये जो OH molecule होता है, ये OH molecule कौन से डायरेक्शन में है किसी भी स्ट्रक्चर के? अगर ये राइट हैंड साइड पे है, अगर ये OH molecule स्ट्रक्चर के राइट हैंड साइड पे है, तो we write it as a capital D configuration. Remember, I have told you small d and capital D are different in terms of stereochemistry. So whenever I talk about stereochemistry, this capital D and small d are different. Small d dextro or rotatory, that means optical rotation बताता था, but ये d क्या है? This is a relative configuration. हम जब नाम देते हैं तो this is d configuration capital D. कैपिटल D होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में. तो ये जो OH है, अगर ये राइट हैंड साइड पे आता है स्ट्रक्चर के, तो ये D हम इसको नाम देते हैं. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आता है OH, आप देखेंगे दोनों भी स्ट्रक्चर हम 3 डायमेंशनल में देखें या 2 डायमेंशनल में देखें, ये दोनों स्ट्रक्चर में ये लेफ्ट हैंड साइड पे आता है.
तो जहां लेफ्ट हैंड साइड पे OH ग्रुप आता है वहां पे हम इसको L नाम देते हैं, कैपिटल L. ओके, नाउ दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कार्बन. अब इसमें सेंट्रल कार्बन एक ही है तो हमने उसी का OH डिसाइड कर लिया. बट इफ my compound is having multiple central carbon, then what I will going to do. ठीक है, अगर मल्टीपल सेंट्रल कार्बन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट सेकेंड लास्ट कार्बन होता है, जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है उस पे जो OH अटैच होता है उसका हम डायरेक्शन देखते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. ग्लूकोज हैविंग 6 कार्बन की चेन है. ओके, अब 6 कार्बन की चेन में वी स्टार्ट फ्रॉम दिस एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप से हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. तो ये जो लास्ट से सेकेंड कार्बन है दैट मीन्स दिस कार्बन. अब हम इसमें देखते हैं OH ग्रुप कहाँ पे है. इसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो हम इसको कैपिटल D नाम देते हैं. अगर इसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम इसको कैपिटल L नाम देते हैं. इज इट क्लियर टू यू? Yes, students, do you get this? Okay, so in this structure, this is a structure of lactic acid. Again, you can see the direction of OH in this is right hand side. So we name it as capital D. In this we have two direction. अब ये जो structure होता है हम D और L तभी नाम देते हैं जब वो दोनों structure दोनों isomers है और enantiomers है दोनों के, तभी हम D और L नाम दे सकते हैं. बट अगर सपोज इस मॉलिक्यूल का आइसोमर नहीं है, ठीक है, इसका कोई आइसोमर नहीं है या डायस्टीरोमर है या मल्टीपल आइसोमर है तो हम ये नाम नहीं दे सकते बिकॉज इट्स अ ओनली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. व्हेन वी रिलेट दीज टू enantiomers then only we name one enantiomers as capital D and one enantiomer as capital L. ठीक है, that's why it's a relative configuration. हम एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को ये नाम नहीं दे सकते. It's necessarily a enantiomer. Now, absolute configuration. This is a second configuration which we usually use while we name a structure. जब भी हम किसी structure का नाम लिखते हैं तो usually we name as R and S nomenclature, or you can see this is called as absolute configuration and also it is called as sequence rule. Now, why it is called as sequence rule? Let us see. अब इसमें कुछ rules होते हैं. So you have to study certain rules. You have to remember certain rules. So this is very important. When you remember the rules, then only you will be able to name this type of structure. Okay, that is a bit complicated क्योंकि इसमें बहुत सारे rules आपको याद रखने पड़ते हैं. तो pay attention on this. So it's an actual arrangement of atom or a group of molecule in the space. It's not a relative configuration. It's an actual configuration. The configuration can be changed only by breaking and making of bond. Only when we break or make a bond, then only the configuration can be changed. It's not interconvertible. हम इसका orientation या direction change करके हम इसका configuration change नहीं कर सकते. जैसे D और L का structure हमने देखा, हम आपको इधर से देख रही हूँ मैं जो OH लेफ्ट राइट साइड पे दिख रहा है, बट मैं उसी मॉलिक्यूल के पीछे जाके देखूंगी तो मुझे वो लेफ्ट साइड पे दिखेगा, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? तो ऑब्वियसली मैं अगर मेरा डायरेक्शन चेंज कर दे रही हूँ तो वो मॉलिक्यूल का डायरेक्शन DL बन जा रहा है. तो इट्स ओनली अ कंपैरेटिव but it's not an actual configuration. This is an actual configuration. In this system, there is no comparison with any structure or arbitrary molecule. On the other hand, it's the given molecule is considered alone. एक single molecule consider किया जाता है. It's not considered as any enantiomers or diastereomers. It's considered as a alone molecule, a single molecule. Okay. Now, let us see some of the rules of this R and S configuration. First of all, first thing what we have to do, we have to see the chiral center. That means जो कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन है,
एनी नंबर ऑफ कार्बन इट कैन बी, 1 कार्बन हो सकता है, सेंट्रल कार्बन 2 3 4 5, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उन सब कार्बन को हम अलग अलग आर एस कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अगर सपोज मॉलिक्यूल में 4 नंबर ऑफ सेंट्रल कार्बन है तो हर कार्बन का आर एस कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिएंटेशन। ओके, so let us start from a single center, that a single carbon is there in the center of the molecule. So there are 4 groups attached to the carbon. As we know, the carbon is always having 4 groups attached, and if it's a chiral carbon, then it's necessary that all the four groups which are attached to the carbon are different. चारों जो ग्रुप्स अटैच है वो चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रायोरिटी सेट करेंगे कि व्हाट इज द प्रायोरिटी। अब हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, द प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन द रूल, दैट इज द रूल इज नेम्ड एज Ken in gold prelog. Okay, these are the scientists, these are the name of scientists which have discovered this rule. That's why we name the rules in by their name. तो ये आपको एक short question में आ सकता है, ये नाम याद रखना. Okay, it's given in your book. The atom attached to chiral carbon is considered first. अब ये जो atom attached है उसको हम पहले कंसिडर करते हैं, और जो उसको अटैच है, मतलब आपके अटैचमेंट को अटैच है, उसको हम बाद में कंसिडर करते हैं। नाउ व्हाट इज, अब सपोज वन देयर इज वन कार्बन, ओके, यहाँ पे एक कार्बन है, इसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच है, 1 2 3 4। अब ये वाला जो ग्रुप है ये सबसे हेवी ग्रुप है, ठीक है, सबसे हेवी, दैट मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे ज्यादा है, तो हम इसको फर्स्ट नंबर देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ये जो ग्रुप है सपोज ये सेकेंड नंबर पे है, दैट मीन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड प्रायोरिटी, सेकेंड हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, देन दिस इज द थर्ड वन, देन दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है। तो अब जो फोर्थ वन, जो लास्ट वाला होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है, हम उसको कभी भी नीचे कंसिडर करते हैं। तो हम कंसिडर करेंगे इसको अ रोटेटेड मॉलिक्यूल, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ वाला है इसको बाय डिफॉल्ट नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये जो लास्ट प्रायोरिटी वाला रहता है, जब हम 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं तो हम ये लास्ट प्रायोरिटी को नीचे लिखते हैं, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। अगर हम 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल को इमेजिन कर रहे हैं तो ये जो लास्ट प्रायोरिटी वाला मॉलिक्यूल है, we will imagine this in opposite direction, that means we can see, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, that means it is opposite to that of plane, जो हमारा प्लेन है, ठीक है। अ सिंगल पेज अगर हम कंसिडर करते हैं तो आउट ऑफ दैट मीन्स उस पेज की जो अपोजिट साइड में जो प्लेन जाता है, उस प्लेन में ये हम उसको फोर्थ प्रायोरिटी वाले को कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स हम उसको उसी डायरेक्शन में देखते हैं। अगर ये इसका एंगल अलग है, दैट मीन्स जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो ऊपर है या इधर साइड में है या लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल को रोटेट करके इमेजिन करेंगे। First what we will do, we will rotate the molecules in such a direction that the last priority will be either in downwards direction or in outwards opposite direction to towards your side, ठीक है, आपके opposite direction में वो असाइंड हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब ये मॉलिक्यूल में हमने देखा ये जो कार्बन है इसमें फोर्थ वाले को हमने नीचे कर दिया। अब जब हम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड देखते हैं तो व्हाट डायरेक्शन, ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, पहले फर्स्ट है, फिर वहां से सेकेंड, फिर वहां से थर्ड, तो ये कौन से डायरेक्शन में रोटेशन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यस, कौन से डायरेक्शन में रोटेशन है, भावना, भावना बोकड़े इज देयर, आनंद ठाकुर, Anand Thakur is there. Okay. Firdaus. Yes. Firdaus.
ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में? यस राइट, इट्स रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम जो प्रायोरिटी सेट करते हैं उसमें फोर्थ वाले को हम अलग कर देते हैं, दैट मीन्स या तो नीचे या बैक साइड में। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स हम पहले से फर्स्ट लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें हम क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है, तो जहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम उसको नाम देते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ओके, मार्क अ स्टार ओवर देयर इन योर बुक, मार्क अ स्टार, ओके। जहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है हम उसको आर कॉन्फ़िगरेशन नाम देते हैं, एंड दिस आर मींस रेक्टस, ओके, इट मींस अ रेक्टस। ये जो एक है ग्रीक लेटर है रेक्टस, which means right, in right direction, it is rotating in the right direction, that's why we name it as rectus, and in short form we write it as R configuration, okay. In on the similar manner, if this priority rotates in left hand side, that means in anti-clockwise direction, then what we will do, we will name it as S configuration, and this S means sinister, okay, which means left hand side. The sinister means left hand side. Again, you have to remember this. This could be a 1 mark question. Okay, in your MCQs. So this is when it is rotating in clockwise direction, we name it as R configuration. That means rectus. That means right hand side. If it's this 1 2 3 priority जो है ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, we name it as S configuration, or this is called as sinister, which means left hand side. Okay, so you have to remember all this. So let us see, this is the directional linkage atoms as same to the next. If double bond is there, suppose अब हमने देखा कि ये जो कार्बन है इसमें चारों अलग अलग ग्रुप अटैच थे, ठीक है। अब चार अलग अलग ग्रुप होने की बजाय सपोज मेरे कार्बन में एक डबल बॉन्ड अटैच है, maybe double bond is with carbon carbon or carbon oxygen or carbon nitrogen, anything, okay, there is a double bond and obviously एक double bond आ जाता है तो बाकी के जो है वो दो bonds बचते हैं, okay। अब suppose ये दो bond है तो हम क्या करते हैं, ये बॉन्ड को हम एक सिंगल प्रायोरिटी कंसिडर करते हैं, दैट मींस आई कंसिडर दैट दिस कार्बन इज अटैच वंस विथ दिस, ये एक बॉन्ड कंसिडर करते हैं और ये दूसरा बॉन्ड कंसिडर करते हैं। तो सपोज अगर ये ऑक्सीजन से अटैच है, ओके, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन दो बार ऑक्सीजन से अटैच है, तो हम इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं, दिस इज 1 and 2 वॉट एवर एक्स वाई जेड, हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये एक कार्बन से, ये एक ऑक्सीजन से अटैच है और ये एक ऑक्सीजन से अटैच है, दैट मीन्स हम इन दोनों बॉन्ड्स को सेपरेटली ये करते हैं। अगर ये सी ओ, यू कैन सी दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, वी कंसिडर्ड एट इज लाइक दिस, ठीक है, दैट मीन्स कार्बन इज अटैच विद टू डिफरेंट ऑक्सीजन, हम इस तरीके से इसको कंसिडर करते हैं। अगर सपोज ये ट्रिपल बॉन्ड है तो वी कंसिडर इट लाइक दिस, दैट मीन्स कार्बन इज अटैच विद these three different bonds, that means three different nitrogens, तो हम इस तरीके से इसको कंसिडर करते हैं। So after assigning the priority, what we do, we see either it's in clockwise direction or in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देखते हैं कि कार्बन में जो भी ग्रुप्स अटैच है उसका प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हमने वो जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला रहा था उसको आइदर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कर दिया और ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, 3 डायमेंशनल में ऑपोजिट डायरेक्शन में और 2 डायमेंशनल में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, ओके। अब ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कर दिया, अब बचे 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 है, अब हम देखेंगे कि 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर नाम देंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको हम एस नाम देंगे, ओके। सो लेट अस सी
by the example. You can see this is a carbon. Okay, this is a carbon attached with four different groups. This is a cardinal carbon attached with four different groups. अब ये four different group से attach है, तो one is iodine, one is bromine, chlorine and hydrogen. अब हम क्या करेंगे, हमको इसका molecular weight पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. अब अगर हम देखेंगे तो ये तो सिंपली सारे फ्लोराइड्स है, तो आप देख सकते हैं अगर हम सेवेंथ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है और आयोडीन उससे बड़ा है. तो हम बोल सकते हैं ये सबसे हेवीएस्ट ग्रुप है, ये सेकेंड हेवीएस्ट ग्रुप है, देन दिस इज थर्ड हेवीएस्ट ग्रुप एंड दिस इज द लास्ट ग्रुप. तो अब हमारे कंपाउंड में आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो सबसे हेवी कौन सा है, कौन सा सबसे हेवी है, आयोडीन. आयोडीन इज द मोस्ट हेवीएस्ट, देन सेकंड, दैट मींस हमने आयोडीन को फर्स्ट नंबर दे दिया, देन ब्रोमीन को हमने सेकंड नंबर दे दिया, क्लोरीन को हमने थर्ड नंबर दे दिया. अब बचा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ऑब्वियसली सबसे हल्का है, द लोएस्ट ग्रुप. ओके, दैट मींस बाय इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट दिखेंगे तो इट्स द लोएस्ट वन. तो अब लोएस्ट वन को हमने क्या कर दिया, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कर दिया. ठीक है, तो ये जो फोर्थ प्रायोरिटी दैट मींस लोएस्ट वाला है, इसको हमने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कर दिया. अब हम देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है. यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट मींस राइट डायरेक्शन में जा रहा है. तो जहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो हम उसको नाम क्या देंगे, R configuration. This is R configuration. Very good. And in the second molecule, you can say this is the same compound, but इसमें ये कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. तो जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है तो वहां पे हम इसको नाम देते हैं S. S means S का मतलब क्या है, फिंस्टर. वेरी गुड. एंड R का मतलब रेक्टस. ठीक है, so this is R configuration and this is N configuration, S configuration. Okay, so this is a very simple molecule. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे तो सिंगल एटम्स थे, कोई ग्रुप नहीं था. ठीक है, तो इट वाज सिंपल कि हमने एक जो भी एटम अटैच है उसका मॉलिक्यूलर वेट देखा और उसके हिसाब से हमने प्रायोरिटी सेट कर दी. बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला जो है कार्बन, अब ये कार्बन में ग्रुप अटैच है. ठीक है, इस कार्बन में कोई एक ग्रुप अटैच है. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे कि इसमें पूरे मॉलिक्यूल में कोई दूसरा कार्बन है क्या, कोई दूसरा कार्बन दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या, ये सेंट्रल कार्बन छोड़ दो, है ना, अदर देन सेंट्रल कार्बन. जब हम चारों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक कार्बन है, कोई दूसरा कार्बन है क्या, एक आयोडीन है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, तो कोई दूसरा कार्बन इसमें नहीं है. ठीक है, तो ये सिंगल कार्बन है. तो डजंट मैटर कि इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, अगर सिंगल कार्बन है, इस पूरे ग्रुप में कोई दूसरा कार्बन नहीं है, तो हम इसके साथ क्या अटैच है उसको हम नहीं देखेंगे. ठीक है, जो भी ग्रुप इसमें अटैच है कार्बन के साथ, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है या कीटोनिक ग्रुप है, जो भी है हमको उससे मतलब नहीं है. हम सिर्फ इस कार्बन को देखेंगे, हम सिर्फ इस कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, सॉरी एटॉमिक वेट लेंगे. ठीक है, तो हम अब अगर कंपेयर करते हैं तो दिस इज आयोडीन, दिस इज द हेवीएस्ट वन, दिस इज द सेकेंड प्रायोरिटी, दैट इज क्लोरीन इज द सेकेंड प्रायोरिटी, द atom with the second priority and the third is the carbon. ओके, तो हम मॉलिक्यूलर वेट हमको सबका ध्यान में रखना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कार्बन इज द थर्ड प्रायोरिटी एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज अगेन द स्मॉलेस्ट वन. सो द स्मॉलेस्ट वन इज केप्ट एट लोअर साइड. हमने हाइड्रोजन को क्या किया, लोअर साइड में रखा. तो जब हमने ये ग्रुप देखा तो दिस इज गोइंग इन द clockwise direction. So in the clockwise direction we name it as R configuration. ठीक है, हमने इसको R configuration नाम दे दिया. अगेन हम इसका enantiomer का देखते हैं तो दिस इज आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन क्लोरीन, देन अगेन कार्बन, नॉट COOH. क्या देखेंगे, हम सिर्फ कार्बन को देखेंगे, बाकी ग्रुप को देखेंगे नहीं, सिर्फ कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ अटैच है.
ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, डायरेक्टली बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ, इसलिए हम सिर्फ कार्बन को देखेंगे। जिससे वो डायरेक्टली बॉन्डेड है हम सिर्फ उसको देखेंगे। ठीक है, तो थर्ड प्रायोरिटी इज द कार्बन। फिर हमने H को नीचे रखा, इट इज रोटेटिंग इन left hand direction, that means anti-clockwise direction, that's why we name it as S configuration। हमने इसको क्या नाम दिया, S configuration। again let's take a another example। अब ये जो एग्जाम्पल है, हमने देखा था पहले इसमें कि एक ही कार्बन था, अब इसमें दो कार्बन है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल में दो कार्बन है। अब दो कार्बन है तो दोनों का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट तो सेम है क्योंकि वो कार्बन है। तो हम अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये कार्बन के साथ कौन से ग्रुप अटैच है, और कार्बन के साथ डायरेक्टली जो ग्रुप अटैच है ये वाले कार्बन के साथ, ठीक है, ये वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच है हम उसका वेट लेंगे। तो इसके साथ क्या अटैच है, एक तो दो हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, और एक CH3 ग्रुप अटैच है। ठीक है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन, दूसरा वाला कार्बन अटैच है और दो हाइड्रोजन अटैच है। तो अब हम इसका वेट देखेंगे, और इसके ये कार्बन के साथ क्या अटैच है, तीन हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। तो अगर हम 3 हाइड्रोजन एटम्स का वेट लेंगे और 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन का वेट लेंगे, तो किसका वेट ज्यादा रहेगा, यस किसका वेट ज्यादा रहेगा, आंसर मी। दो का हाँ, उसमें किसका वेट रहेगा, जिस कार्बन के साथ एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अटैच है, दैट मीन्स ये वाला ग्रुप, इसका वेट ज्यादा रहेगा और इसका वेट कम रहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम जब प्रायोरिटी सेट करेंगे, तो ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन तो ऑब्वियसली कार्बन से बड़ा है। ठीक है, तो क्लोरीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी सेट कर लेंगे। फिर ये वाला जो है, दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू कार्बन, क्योंकि दोनों भी कार्बन है, तो हमको ये दोनों कार्बन के बीच में कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली ये कार्बन जो है वो हैवी है, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन अटैच है और इसके साथ तीनों हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑब्वियसली ये कम वेटेड है। तो हम इसको सेकेंड प्रायोरिटी सेट करेंगे और हम इसको थर्ड प्रायोरिटी सेट करेंगे। Okay, so this will be the second priority group and this will be the third priority group. Again, hydrogen is smallest one, that's why we have put it in downwards direction। हमने इसको downwards direction में डाला और फिर हमने क्या किया, we have seen this is 1 2 and 3 and again this is rotating in which direction, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये निकिता नागपुर है, निकिता नागपुर इज देयर, यस निकिता, कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यस यस क्लॉकवाइज। तो हम इसको नाम क्या देंगे बेटा, क्या नाम देंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड। ठीक है, तो हम इसको आर कॉन्फ़िगरेशन नाम देंगे। अब ये जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में दिस इज अ इनैंशोमर ऑफ दैट फर्स्ट ग्रुप। ओके, अब ये उसका इनैंशोमर है, दिस इज अ सेंट्रल कार्बन, इसमें क्या अटैच है, क्लोरीन। अगर हम इसका प्रायोरिटी देखते हैं तो दिस इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो व्हाट नेम इट इज असाइन, इट्स एस कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस इट्स अ सिस्टर मॉलिक्यूल। Okay, again we have taken the third example। Okay, in the third example that is glyceraldehyde। अब ये जो glyceraldehyde हम देखते हैं, इसमें again एक ऑक्सीजन अटैच है, एक दो कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है या अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, हम ये पहले नहीं देखेंगे। हम पहले क्या देखेंगे कि कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या क्या अटैच है। डायरेक्टली एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और दो कार्बन है। अब दो कार्बन आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स इस कार्बन के साथ कौन से ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के साथ कौन से ग्रुप अटैच है। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक अल्कोहलिक ग्रुप है, इसमें से कौन सा हेवीएस्ट है, ये दोनों में से कौन सा हेवीएस्ट है, राइट, एल्डिहाइड हेवीएस्ट है, वेरी गुड। कैसे बताया आपने एल्डिहाइड हेवीएस्ट है,
अगर हम देखेंगे कि कार्बन के साथ तो एक ऑक्सीजन अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, बट ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, जस्ट आई एम टेलिंग यू, ये जो ग्रुप है इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन अटैच है और एक ऑक्सीजन दैट इज O और उसके साथ एक H अटैच है। तो अगर हम ऐसे इसको देखेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन हेवी दिख रहा है, बट ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से अटैच होता है। जहां पे डबल बॉन्ड आता है तो हम उसको दो ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं। हमने देखा था ना, जहां पे डबल बॉन्ड आया दैट इज C डबल बॉन्ड O है। अगर C डबल बॉन्ड O आता है तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर दैट दिस कार्बन इज अटैच विथ two oxygens. Okay, this is attached with two oxygen. Obviously अगर ये दो ऑक्सीजन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, and the second this alcoholic carbon is attached with only one oxygen and two hydrogen group. So in this case we can say this is the heaviest one. Aldehyde is the heaviest one and this is the lower one. ओके, तो अगर हम अब प्रायोरिटी देखेंगे तो ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कार्बन से ज्यादा होता है, तो हम ऑक्सीजन को फर्स्ट कंसिडर करते हैं। इस केस में हम एल्डिहाइड ग्रुप को सेकेंड कंसिडर करते हैं और ये अल्कोहलिक कार्बन को हम थर्ड कंसिडर करते हैं। अगेन द फोर्थ वन दैट हाइड्रोजन इज ऑन द फोर्थ प्रायोरिटी। ओके, दिस इज ऑन द फोर्थ प्रायोरिटी। अब ये जो फोर्थ प्रायोरिटी में है तो ऑब्वियसली हम इसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर दिस मॉलिक्यूल एज हाइड्रोजन इज इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। Okay, now let us see in which direction this is rotating, clockwise or anti-clockwise. This is rotating in clockwise direction. Very good. So it's rotating in clockwise direction. So we name it as R. And the second molecule, its enantiomer, is rotating in anti-clockwise direction. So it is named as S configuration. Okay. In lactic acid, अब lactic acid में अगर हम देखेंगे, this is another example of lactic acid. Again, this is two carbons आते हैं, इसमें दो carbons है और एक OH ग्रुप है। ऑब्वियसली ये कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। फिर अब बचता है दो कार्बन। अब ये दो कार्बन को कैसे कंसिडर करेंगे, इस कार्बन में क्या अटैच है, इस कार्बन में 3 ऑक्सीजन अटैच है। कोई बता सकता है 3 ऑक्सीजन कैसे अटैच है, यहाँ तो मुझे 2 ही दिख रहे हैं, तो 3 ऑक्सीजन कैसे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब this is double bond with one oxygen and this is single bond with OH group. तो जहां पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आया तो मैं इसको 2 ऑक्सीजन कंसिडर करूंगी, मैं इस ऑक्सीजन को डबल कंसिडर करूंगी। दैट मीन्स दिस कार्बन इज डबली बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन। दैट मीन्स आई कैन कंसिडर दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 different oxygen and this is another, that is third oxygen. So obviously this carbon is attached with 3 oxygen group. कितने ऑक्सीजन से अटैच है ये, 3 ऑक्सीजन से। ओके, सो दिस इज, हम जो अब RS कॉन्फ़िगरेशन में कंसिडर करते हैं तो हम बोलते हैं कि दिस इज दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 3 डिफरेंट ऑक्सीजन्स। सो द ऑब्वियसली दिस इज द हेवियर वन, बिकॉज ये तो इसके बेचारे के पास तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, हल्के हल्के वाले हाइड्रोजन, तो ये तो हेवी हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली हम इसको सेकेंड प्रायोरिटी देंगे और इसको देंगे थर्ड प्रायोरिटी। Now hydrogen is again on the fourth priority. We kept it downwards direction. Obviously, if I kept the hydrogen in downwards direction, this is rotating in clockwise direction. So we name it as R. Suppose this is rotating in. अब इसमें क्या है? This is 1, this is 2, and this is 3. Now in this case, it is rotating in anti-clockwise direction. So I will name it as S configuration. Okay, मैंने इसको क्या नाम दिया, S configuration मैंने इसको नाम दिया। Again, next example. Let us see the next example. In the next example, you can see this carbon is attached with one hydrogen, two carbons, and one nitrogen. Obviously, nitrogen is heavier than carbon.
तो हमने पहले क्या कर दिया, नाइट्रोजन को हमने दे दिया फर्स्ट नंबर, ठीक है, नाइट्रोजन को दे दिया हमने फर्स्ट नंबर। अब बचे दो कार्बन, दो कार्बन में हेवीएस्ट कौन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है, ठीक है, ये कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है और दो हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली, और ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन अटैच है, तो ये वाला हैवी होगा कि ये वाला हैवी होगा, ये वाला कार्बन हेवी होगा क्योंकि इसके साथ एक और कार्बन अटैच है। तो दिस इज द हेवीएस्ट वन, सो आई विल नेम इट एज नंबर 2. So this is number 3 and this hydrogen is number 4. This is hydrogen is on number 4. अब हम नाम कैसे देंगे, क्योंकि हमको हाइड्रोजन तो नीचे चाहिए, ठीक है, हमको हाइड्रोजन क्या चाहिए, नीचे चाहिए। अगर हमने नीचे नहीं रखा तो हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड नहीं कर सकते। अब ये हाइड्रोजन अगर नीचे नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट करेंगे कि जो जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला है वो नीचे आ जाना चाहिए, दैट मीन्स द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप should be in the downwards direction. Okay, so this H comes in downwards direction, so I am rotating this molecule with 90 degree, 90 डिग्री एंगल से मैंने जब इसको रोटेट कर दिया तो फोर्थ वाला जो प्रायोरिटी ग्रुप है ये आ गया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आई कैन सी दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो अब जब मैं ऐसे देखूंगी तो मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, this is rotating in anti-clockwise direction. When the molecule is when this group is rotating in anti-clockwise direction, I will name it as S configuration. Okay, again I have this molecule, अब इसमें भी जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो कहाँ है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है क्या, नहीं है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में नहीं है। हमने ये एग्जांपल देखा था, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देन सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि ये क्या है, दो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, this carbon is attached with two different oxygens and this carbon is attached with three hydrogens, so this is the heavier one, so we have considered this as second carbon. Okay, this is the second priority group, so this is first priority group, second priority group, third priority group, but now the fourth priority group is not in the downwards direction. So what I will going to do, I will I will rotate this molecule with a 90 degree angle so that this fourth priority group will come in the downwards direction. Okay, when it comes in the downwards direction, I will see this is 1, 2 and this is 3. So in which direction it is getting rotated? It is rotated in clockwise direction. Yes, it is rotated in clockwise direction. So I can name it as R configuration. Okay, I will name it as R configuration. Again, we will take an example. In this example, what is done? This is the first priority group क्योंकि ये कार्बन, एक ऑक्सीजन, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो obviously this is directly attached with this oxygen, so this is oxygen का molecular weight ज्यादा है, so we considered it as first priority group. Now we have two carbons में this is attached with all the three hydrogens and this is attached with one carbon and two hydrogens. तो obviously ये वाला ग्रुप जो है वो ज्यादा heavier ग्रुप है, तो I will consider it as second priority group and this is the third priority group. Now the fourth priority group downwards direction में है क्या? Is the fourth priority group is in downwards direction? है क्या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में? नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, मुझे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करना पड़ेगा कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है इट शुड बी इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. ओके, सो आई हैव टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल विद 180 डिग्री. मैंने इसको 180 डिग्री से जब रोटेट किया तो दिस फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन ग्रुप, दैट इज fourth priority group, will be in downwards direction. Now when it is in downwards direction, now I can consider this is one, this is second group and this is the third group. Now in which direction this is getting rotated? This is rotated in anti-clockwise direction, right? It is rotated in anti-clockwise direction, so I will name it as
S configuration. Okay. Yes बेटा. ऐसे रोटेट करना है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो नीचे आना चाहिए. जैसे इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या था, इसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप था ये साइड में था, है ना, ये साइड में आ रहा है. तो ऑब्वियसली इसको मुझे नीचे लाने के लिए 90 डिग्री से रोटेट करना है, तभी ये नीचे आ जाएगा. मुझे एंगल इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमको एंगल नहीं लिखना है कि हमको कितने एंगल से रोटेट करना है. हमको बस इस तरीके से रोटेट करना है कि ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आना चाहिए, इसमें नीचे आना चाहिए. ठीक है. अगर ये नीचे आ जाता है देन आई कैन सेट द आर एस कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें ये केस में हमको इसको नीचे लाने के लिए 90 डिग्री से रोटेट करना पड़ा, और इसमें हमको ये हाइड्रोजन क्योंकि ये ऊपर है तो इसको नीचे लाने के लिए मुझे पूरा फुल रोटेशन, पूरा हाफ फुल रोटेशन देना पड़ा. तो हाफ रोटेशन मैंने जब दिया तो ये 180 डिग्री पे रोटेट हो गया. Degree is not important, you don't have to write the degree of rotation. Just what you have to do, you have to take this hydrogen in the downwards direction. You have to consider this hydrogen in the downwards direction.